Hello, students. Good afternoon, everybody. Welcome to yet another session of Akash Baiju's NEET. So, today we are going to talk about career options after MBBS. What is the roadmap of becoming a doctor? What all different options you have, and so on and so forth. Okay. Now, a lot of you would have given NEET 2022, you would have gotten your results and you'd be awaiting counseling कि अब MBBS में admission लेना है. But what after that? A lot of you might be preparing for NEET 2023 or 24, and it's a good idea for you to know what awaits you, what all different career options you have, right? So, without further ado, it is for every student who wants to become a doctor, all right? Let's see. Let's understand the roadmap to becoming a doctor first, right? So what do? You start with middle school, 10th grade तक आप science पढ़ते हैं. If you're really interested in science and you see, yeah, I want to study more of it, you take science in 11th, 12th as well, right? And if you want to become a doctor, you take science with biology in 11th, 12th, right? Physics, chemistry, biology आपके primary subjects होते हैं. You study, you write NEET UG, and then you hope for a really good medical college for MBBS, right? अब एक बार MBBS आप करते हो ना, MBBS क्या है? MBBS is a UG degree, right? It's an undergraduate degree. After MBBS, you become a doctor, but then there is multiple other specializations that can be done as well, right? तो MBBS के बाद आप क्या कर सकते हैं? MBBS के बाद अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली भी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप स्पेशलाइजेशन के पास जा सकते हैं, right? So you can go for MD, MS or diploma courses, or you can directly go for job. After doing post graduation courses also, उसके बाद भी आपके पास options होते हैं कि अब आप job में जाना चाहते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सारे jobs होते हैं, और you can go for further studies, super specialization में भी आप जा सकते हैं, which is DM, MCH and so on, right? So let's understand all of this in detail and let's get to it. First things first, 12th grade के बाद आप NEET UG देते हैं, and if you get a really good rank, you can get into a medical college, right? MBBS आपका डिग्री परस्यू करने के लिए आप चले जाते हैं. Now, MBBS डिग्री क्या है ये? This is a undergraduate degree, as I said. तो बैचलर की डिग्री मिलती है आपको, राइट? जैसे कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, बीटेक मिलता है लोगों को अगर मैथ के साथ इंजीनियरिंग करते हैं लोग, राइट? अगर बीए आर्ट्स में करते हैं तो बीए मिलता है, साइंस में करते हैं बीएससी मिलता है. इसी तरीके से अगर आप मेडिसिन में करते हैं तो बैचलर ऑफ मेडिसिन या बैचलर ऑफ सर्जरी मिलता है आपको, राइट? डिपेंडिंग ऑन वेयर योर इंक्लिनेशन इज एंड व्हाट काइंड ऑफ कोर्सेज यू हैव टेकन. नाउ एमबीबीएस का फुल फॉर्म जेट MBBS जो आता है वो लैटिन से आता है, ऑलराइट? सो द कोर्स ड्यूरेशन इज 5 years 6 months. 5.5 साल का कोर्स होता है आपका. इस 5.5 साल के कोर्स में 4.5 years इज फॉर कोर्स वर्क, योर स्टैंडर्ड कोर्सेज आर देयर, एंड 1 year इज फॉर इंटर्नशिप, ऑलराइट? नाउ एडमिशन कैसे होता है? नीट यूजी से होता है, एज यू नो ऑलरेडी, एंड सिलेबस में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स होते हैं आपको जो कि पढ़ाए जाते हैं. ओके, यू कैन डू MBBS अब्रॉड एज वेल, राइट? तो इंडिया में आप नहीं करना चाहते, आप बाहर जाके करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल. US, UK, रशिया, कनाडा, काफी इंडिया से लोग जाते हैं करने के लिए. एंड in India also there are really good medical colleges, right? Top medical colleges की list तो मैंने आपको बता रखी है already. Here I have listed just a couple of top medical colleges. So of course AIIMS Delhi, AIIMS की पूरी series है of institutes है, all are very good. PG IMER, CMC Vellore, and then there are other, state government colleges are also there, government colleges, private colleges, deemed universities are there. So आप इंडिया से भी कर सकते हैं, आप बाहर से भी कर सकते हैं. Now, let's understand more about कि alright, MBBS जब आप ये 5.5 साल का कोर्स करते हैं तो उसके अंदर होता क्या है, alright? In India, when you do MBBS, right, you have 4.5 years of coursework, as I just told you. 19 courses आपके होते हैं and 1 year of internship, right? Coursework में आपको basic surgery and practicals करवाए जाते हैं, right? And then after getting your MBBS, you have to decide what you want to do further, right? तो
जैसा कि हम बात कर रहे हैं इन दिस सेशन वी आर कवरिंग मोस्टली व्हाट टू डू आफ्टर एमबीबीएस. सो आफ्टर एमबीबीएस यू हैव एज आई सेड टू ऑप्शंस. या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए चले जाते हैं, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, और यू कैन गो फॉर ऑल ऑफ दीज जॉब्स, राइट. प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में काफी सारी जॉब्स होती हैं जस्ट आफ्टर एमबीबीएस ऑल्सो. सो डिपेंडिंग ऑन वॉट यू वॉन्ट टू डू, कई बार लोगों को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होता है कि इमीडिएटली हम दोबारा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो people directly join the jobs and then they can pursue. You can take 1 year, 2 years of pursuing a job and then after that you can pursue PG also. अच्छा, let's take a look at them one by one. PG diploma अगर हम देखते हैं तो अगर हम post graduation courses की बात करते हैं, right? So post graduation after MBBS 3 साल की ड्यूरेशन के जो कोर्सेज होते हैं they have higher weightage so to speak, right? वो ज्यादा माने जाते हैं, उनको ज्यादा मान्यता मिलती है. And these are 2 courses. So एक तो होता है MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन. मतलब अगर आप मेडिसिन के साइड में जाना चाहते हैं तो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन MD करेंगे आप. पर अगर आप सर्जरी के साइड में जाना चाहते हैं तो मास्टर ऑफ सर्जरी MS करेंगे. ओके, एंड दीज आर as I said 3-year ड्यूरेशन के कोर्सेज होते हैं एंड इनमें एडमिशन मिलता है नीट पीजी के थ्रू, राइट. सो नीट पीजी के थ्रू मिलता है. जैसे कि नीट यूजी इज अ वेरी वेरी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट पीजी भी काफी हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, काफी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है. द सिलेबस फॉर नीट पीजी इज योर एमबीबीएस सिलेबस, राइट. 19 कोर्सेज जो मैंने आपको बताए. सो now if we talk about the specialization, right, कौन से specialization में होते हैं ये, तो 19 subjects of MBBS होते हैं. most of them में MD specialization होता है. so MD specialization is done in cardiology, endocrinology, anesthesiology, right, anesthesia के लिए community medicine, dermatology, skin medicine, family medicine, general medicine, physiology, geriatrics, old people medicine, health administration, pediatrics, लिटिल किड्स मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, लंग्स वाले एरिया के लिए, राइट. देन वी हैव गॉट मास्टर ऑफ सर्जरी. मास्टर ऑफ सर्जरी इज नॉट इन एज मेनी स्पेशलाइजेशंस एज DMS, alright. So here we go. Only some specialized subjects are there for master of surgery. Okay. So general surgery में होता है, plastic surgery में होता है, right? यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ऑर्थोपीडिक्स, ENT, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी में होता है, गाइनोकोलॉजी, ऑर्थोपीडिक्स. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन यू वांट टू डू, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर इंटरेस्ट्स आर एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ योर नीट पीजी स्कोर्स एंड रैंक्स आर, आप उसके बाद भी अपने हिसाब के कोर्सेज, अपनी चॉइस के कोर्सेज भरते हैं. उसके बाद फिर डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में उसके बाद फिर आपकी उसकी भी लिस्ट आती है और आपको पता चलता है कि आपको क्या मिला फाइनली, राइट. जस्ट लाइक नीट यूजी, depending on what your performance is and depending on what all different courses and colleges are in demand, depending on what your choices are, ये सब का मिला जुला होके आपको मिलता है. Okay. If I talk about diploma, right? So अगर आप डिप्लोमा कोर्सेज की बात करते हैं तो दीज आर 2-year long courses, right? 3 साल के कोर्सेज नहीं होते हैं, ये 2 साल के कोर्सेज होते हैं एंड एज अ रिजल्ट इट डज नॉट कैरी द सेम वेट एज MD और MS डिग्रीज, राइट. अब डिप्लोमा भी सारे फील्ड्स में नहीं होता है, थोड़े रिलेटिवली कम फील्ड्स में होता है. कहाँ होता है, लेट्स सी. डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन, DVL, ENT, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, स्पोर्ट्स मेडिसिन, पल्मोनरी मेडिसिन, रेडियोथेरेपी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, राइट. इन सब में आप डिप्लोमा कर सकते हैं. नाउ इफ वी टॉक अबाउट सैलरी, राइट, सो ड्यूरिंग PG स्टडीज, राइट, आपकी ये स्टडीज होती हैं, ड्यूरिंग दैट यू डोंट गेट एनी सैलरी. व्हाट यू डू गेट रादर इज गवर्नमेंट स्टाइपेंड, राइट. अब ये जो स्टाइपेंड होता है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी नॉट अ सैलरी बट काइंड ऑफ अ स्कॉलरशिप. सो इसमें आपको टैक्स वैक्स नहीं लगता है. एंड अगेन स्टाइपेंड डिपेंड्स ऑन विच स्टेट यू आर इन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो द गवर्नमेंट स्टाइपेंड अमाउंट गोज फ्रॉम वेरीज फ्रॉम 30,000 to 90,000 per month approximately, right? Now
ये तो हो गया पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, कितनी सैलरी आपको मिलती है, जो कि नहीं मिलती है, बट देन अगेन द स्टाइपेंड इज कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड, तो वो भी ठीक ठाक काम चल जाता है उसका भी, राइट? एंड if we talk about, well, not doing PG or diploma but going for jobs, right? After MBBS अगर आपके कुछ भी constraint है, maybe financial constraint है, maybe you want to take a break of probably 2-3 years, do some jobs and then parallelly आप पढ़ाई करना चाहते हैं PG के लिए so that you get a really good specialization, right? तो वैसा भी करते हैं लोग, and उसके लिए आप अलग अलग तरीके के jobs join कर सकते हैं, ठीक है? So प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, लेट्स लुक एट इन डिटेल कि कौन कौन से जॉब्स मिल जाते हैं. सो इफ वी लुक एट प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स एट एमबीबीएस लेवल, गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो जूनियर रेजिडेंट के तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? जूनियर रेजिडेंट, जूनियर डॉक्टर, यू कैन ज्वाइन एज मेडिकल ऑफिसर इन डिफरेंट गवर्नमेंट की फील्ड्स निकलती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी निकाले जाते हैं, जैसे रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल्स होते हैं और मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, राइट? देन यू हैव गॉट कई सारी मेडिकल ऑफिसर की जॉब्स निकलती हैं, राइट? यू कैन अप्लाई टू दोज. फिजिशियन बन सकते हैं, लेक्चरर एट अ मेडिकल कॉलेज, रिसर्चर, साइंटिस्ट, मेडिकल राइटर, हेल्थ केयर इंफॉर्मेटिक्स, डिफेंस सर्विसेज में आप जा सकते हैं, राइट? जैसे कि ऑर्डिनेंस बोला, ऑर्डिनेंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, उससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स निकलती हैं एज अ मेडिकल ऑफिसर. हॉस्पिटल मैनेजमेंट में भी आप जा सकते हैं, ऑलराइट? जस्ट आफ्टर एमबीबीएस. नाउ इफ आई टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, राइट? प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की अगर बात करते हैं तो यू कैन गो इनटू स्पोर्ट्स मेडिसिन, दैट देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ इट्स pretty lucrative these days. स्पोर्ट्स मेडिसिन में जा सकते हैं. एंटरप्रेन्योरशिप, अपना खुद का कुछ खोल सकते हैं, राइट? आजकल मेडिकल रिलेटेड काफी स्टार्टअप्स है जिनमें एमबीबीएस डिग्री के बाद पीपल आर रिक्वायर्ड. लीगल मेडिकल एडवाइजर बन सकते हैं आप, फोरेंसिक मेडिकल एग्जामिनर बन सकते हैं, फोरेंसिक साइकाइट्री में जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, रेडियोलॉजी और डायग्नोस्टिक इमेजिंग में जा सकते हैं. फेलोशिप फॉर एमबीबीएस ग्रेजुएट्स यू कैन हैव एज वेल, राइट? And if I talk about salary over here, right? यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, depending on which job you are in, which sector you are in, which kind of work you are doing, the salary ranges, it's a pretty big range. ठीक है? आप सैलरी 5 से 18 लाख की भी स्टार्टिंग सैलरी होती है, 20 लाख की भी स्टार्टिंग सैलरी होती है, एंड देन यू कैन मूव ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड डिपेंडिंग ऑन योर करियर पाथ, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू डू एंड हाउ इट गोज, आपकी बढ़ती भी चली जाती है, राइट? डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड हाउ यू डील विथ पेशेंट्स, हाउ यू डील विथ अगेन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, राइट? जैसा कि सारी जॉब्स में होता है, सो टू स्पीक. चलो, नेक्स्ट इज ये तो हो गया आफ्टर एमबीबीएस, राइट? तो आपने आइदर यू डू पीजी or you take a break, you directly join a job and then after that maybe you can think about कि 2 साल 3 साल के बाद मैं वापस से पीजी कर सकती हूँ. Now after PG also, after post graduation also, there are 2 roads again, right? मतलब क्या, आफ्टर पीजी भी आप या तो अब जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? You can go into government jobs, you can go into private sector jobs, or you can go for further super specialization, right? Super specialization के लिए DM या MCH, these are again 3-year long degrees, और ज़्यादा prestigious होती हैं, and so on and so forth, right? So this cycle effectively never ends. You end up getting more and more experience, you end up becoming more and more experienced and knowledgeable doctor, and here we go. Alright, so ये तो हो गई हमारी क्लास 10 से लेकर के जो आपकी डॉक्टर बनने की जर्नी होती है, ये हमने एक बात कर ली है डिटेल में. आज हमने आफ्टर एमबीबीएस क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इनकी बात कर ली है. आगे फिर आएंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट आफ्टर पीजी क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं आपके, राइट? बट अंटिल नेक्स्ट टाइम आई वुड वांट टू लीव यू विद दिस कोट, राइट? Wherever the art of medicine is loved, there is also a love of humanity, right? बहुत ही नोबल प्रोफेशन होता है ये. वी डोंट रियली, जब डॉक्टर्स की बात करते हैं तो पैसे से ज़्यादा हम ये समझते हैं कि इट्स अबाउट सेविंग लाइव्स, राइट? इट्स अबाउट सर्विंग ह्यूमैनिटी. एंड विद दिस, stay motivated guys, stay happy, stay healthy. Until next time,
Happy learning. Bye bye.